How does a deportation happen when it's in direct violation of a court order? The government admitted in court that it made a mistake. Those are their words. I accept their apologies, and I hope that based on this apology, I'm able to return back to my studies and also to be home with my parents. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। एक और झटका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने दिसंबर के महीने में एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट को एनी लूसिया लोपेज बलोजा उनको हॉन्डुरस डिपोर्ट कर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोर्ट ने कहा था कि भाई इनको अमेरिका से बाहर डिपोर्ट नहीं करना है, फिर भी उनको डिपोर्ट किया गया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयर ने माफ़ी मांगी है कि गलती होगी आईस ऑफिसर से, जो हमने इनको बाय मिस्टेक डिपोर्ट कर दिया था। दोस्तों ये गलतियां बहुत महंगी पड़ेंगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये तो वही बात हो गया, आपने किसी को चांटा मार दिया, बाद में बोला ओ सॉरी। अब वो चांटे की भरपाई किससे होगी? मेरे जैसा होगा तो मैं लाठा मारूंगा, मैं ढोई लाल कर दूंगा। दोस्तों ये क्या बात है, मतलब कि पहले डिपोर्ट कर दो, बाद बोलो गलती होगी। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब कोर्ट की हियरिंग थी ना, उसमें फंस गई, क्योंकि कोर्ट में आपको एविडेंस देना होता कि ठीक है भाई डिपोर्ट किया तो क्यों किया। जब कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर था इस स्टूडेंट के लिए कि भाई इनको डिपोर्ट नहीं करना, उसके बावजूद आईस ऑफिसर ने उसको डिटेन करके डिपोर्ट कैसे कर दिया? ये तो सीधा लॉ की वायलेशन है। How does a deportation happen when it's in direct violation of a court order? Aaron, thank you for having us on again tonight to talk about this tragedy. And for months we were left thinking that this was purposeful conduct by the Trump administration. And we went to court on Tuesday, and the government's attorney apologized on behalf of the United States, on behalf of the Trump administration. And we have to accept it for what it is. It's a rare apology, and they can only make this right. An apology without a remedy is a hollow apology, in my view. And what happened here is she was traveling with her Honduran passport. That was her real ID, trying to board a plane, and it was a ruse. TSA and immigration enforcement were working in tandem, told her her boarding pass didn't work. She was abruptly detained, taken to an ICE facility, deprived of phone calls for several days. She didn't know she had a lawyer till Monday, and we'd sued Friday. I didn't know where she was because she was disappeared from the database that would reflect that she was in the custody of ICE. We later learned in talking to Ani that she was, a few miles down the road at a military base, held there for several hours when we were trying to find her and contact her and stop this from happening. And what has apparently happened is an ICE officer received an email with a court order attached and thought that it didn't apply because the plane had already left Massachusetts. But she was flown to Texas. That's still the United States. And the next day she was deported over a weekend before we even had a court hearing. So the first court hearing we've had, we'll accept the olive branch, we'll accept the apology. And I'd like to work with the Trump administration here. They like to make deals. They like to make things happen. Let's make it happen. Let's bring her back home. और अब इसी की भरपाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेगी। ये दोस्तों दूसरा केस आ गया। पहला केस था किल्मार एब्रेगो गार्सिया, उसको भी डिपोर्ट किया गया था, फिर वापस लाना पड़ा। अब ये दूसरा केस है, इसमें भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सोल्यूशन तो यही है कि इन स्टूडेंट को भी, जिनका नाम है एनी लूसिया लोपेज बलोजा, इनको भी वापस लाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा ही होता है जब आप ऑफिसर्स को विदाउट ट्रेनिंग उनको जॉब पे डाल दो। हाँ चलो ये करो कम, वो तो सबको उठा लेंगे, किसी की शक्ल देके उठा लेंगे, किसी की बातचीत करके उठा लेंगे। कोई बोलेगा हाँ तुम काले हो, तुम ब्राउन हो, चलो ये आ जाओ। आईएस ऑफिसर यही गलतियां कर रहे हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयर्स को भरपाई करनी पड़ रही है। ये कोर्ट में हियरिंग हुई ट्यूसडे को, वहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, वो उन लॉयर ने कहा कि हमने आईएस ऑफिसर ने बाय मिस्टेक उनसे मतलब कैसे हो गई यार। दोस्तों अमेरिका है, ये है अमेरिका, यहाँ पर लॉ सबसे ऊपर है। तो ऐसी वायलेशन लॉ की ये भाई पता नहीं इस वक्त क्या ही हो रहा है। I appreciate both of you very much. Ani, the government admitted in court that it made a mistake. Those are their words. I mean, here you are months after this with what you've been going through. What's your reaction to that stunning admission? I was already kind of shocked because of everything that happened. But I'm also with hearing that they have apologized to the mistake that they made. I accept their apologies, and I hope that based on this apology, I'm able to return back to my studies and also to be home with my parents. दोस्तों कल को ये यूएस सिटीजन पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, बाद में बोलेंगे वो गलती होगी जी। मेरे को हंसी भी आ रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार
भाई इस वक्त अमेरिका कैसे चल रहा है, मतलब भगवान भरोसे ही चल रहा है यार देखा जाए, क्योंकि इमिग्रेंट से लेके यूएस सिटीजन तक सब डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए दोस्तों? डरे हुए पता क्यों हैं? कि आइस कहीं हमारा एक्शन देख के हमें डिटेन ना कर ले, आइस कहीं हमारी शक्ल देख के डिटेन ना कर ले। अगर आप चलते चलते जो है आपने कोई अलग लैंग्वेज बात कर लिया हो, आपको डाउट में डाल देगा वो यार ये यूएस सिटीजन नहीं हो सकता है और डिटेन कर लो, और बाद में कल को ऐसा ही सीन ना हो। अब ये जो स्टूडेंट थी इनका जो पूरी कहानी है वो ये है कि थैंक्स गिविंग के टाइम ये अपने फैमिली मेम्बर्स को टेक्सास में मिलने जा रही थी बॉस्टन से। एयरपोर्ट पे जाती हैं, अपनी आईडी लेकर जाती हैं। आई थिंक इनके पास हॉन्डुरस का पासपोर्ट था, तो वहाँ पर इनका जो बोर्डिंग पास है वो काम नहीं करता है। आइस वाले एजेंट आ जाते हैं, इनको डिटेन कर लेते हैं, और डिटेन करने के बाद दोस्तों डिपोर्ट कर देते हैं। इवन कि कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई इनको आपने डिपोर्ट नहीं करना। इनके लॉयर ने बताया कि हमने ईमेल किया था, और हो सकता है कि आइस ऑफिसर ने वो ईमेल पढ़ा हो और उसको लगाओ कि हाँ फ्लाइट तो चले गई है, तो इस ईमेल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्लाइट मैसाचुसेट्स से जा रही थी टेक्सास को, और टेक्सास से बाद में इनको हॉन्डुरस डिपोर्ट किया गया। तो जब टेक्सास जा रही थी तब भी तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर था वो वैलिड था। अब इसी वजह से जब हियरिंग होती है, कोर्ट हियरिंग में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो लॉयर, उन्होंने ये एडमिट किया है कि हमसे ये गलती हो गई, अब इस गलती की भरपाई तो करनी होगी यार। और ये गलतियां दोस्तों इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, आइस ऑफिसर, उनकी एक्चुअली में यार अच्छे से ट्रेनिंग हुई नहीं है। दिख रहा है जो लॉज में क्या लिखा है वो तो बहुत मतलब मन मर्जी कर रहे हैं, एक तरह से जो उनको मन करता है हाँ भाई ये बंदा हो सकता है, नहीं है उठा लो। यही चीज़ जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि इस चीज़ में ना दोस्तों अगर आप शक्ल देख के या एक्शन देख के या फिर आप बोलोगे यहाँ हो सकता है, तो इसमें यूएस सिटीजन को भी खतरा है, इमिग्रेंट को तो खतरा है ही है। तो यूएस सिटीजन तक उन्होंने ट्रैवल करना बंद कर दिया, ग्रीन कार्ड होल्डर तक नहीं जा रहे भाई, ट्रैवल नहीं कर रहे। उनको लगेगा कि कहीं एयरपोर्ट पे डिटेन ना कर ले, क्योंकि डिटेन होने के बाद दोस्तों 5-6 महीने लगते हैं छूटने में, लॉयर कराना पड़ेगा, खामखा लोगों का टाइम। अमेरिका में टाइम सबसे कीमती है और लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है डिटेंशन सेंटर के अंदर। और रीज़न क्या, कोई बात ही नहीं, बस खाली जो है आइस ऑफिसर ने डिटेन कर दिया। ये केस वही दिखा रहा है दोस्तों, और इसीलिए इस केस को अब इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है अमेरिका के नेशनल मीडिया पर कि ये गलतियां आइस ऑफिसर से क्यों हो रही, और अगर हो रही हैं तो सुधारो। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा सीधा पुकारा जा रहा है कि अब इन स्टूडेंट को वापस लेकर आओ, और सही बात है यार, गलती होगी। सो दोस्तों ये जो स्टूडेंट हैं एनी लूसिया लोपेज, ये बचपन में ही हॉन्डुरस से अमेरिका आ गई थी अपने पेरेंट्स के साथ। इन्होंने उसके बाद असाइलम लगाया, मतलब पूरा बचपन से लेकर अब तक ये अमेरिका में ही रही, एक तरह से अमेरिका का ही पार्ट बन गई हैं। बैप्सन कॉलेज से अपनी जो थी स्टडी कर रही थी बिजनेस में। अब अचानक से जब ये एयरपोर्ट में ट्रैवल करती हैं अपने घर की ओर, मतलब टेक्सास में इनके पेरेंट्स रहते हैं बॉस्टन से, वहाँ पर आइस वाले इनको डिटेन कर लेते हैं। अब पहले भी तो लोग ट्रैवल करते थे, कितने सालों से ये अमेरिका में रह रही थी, तब किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन अब अचानक से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने से आइस एजेंट तो मतलब इतने ज़्यादा उनको पावर मिल गई है कि हाँ भाई आपका मन करे तो उठा लो किसी को भी, उसको डिपोर्ट भी कर दो, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं सुनना। अब इतने में क्या होता है कि जब इनको डिपोर्ट कर देते हैं तो इनकी फैमिली जो पीछे थी टेक्सास में, वहाँ भी आइस एजेंट पहुँच जाते हैं। तो ये पूरी इस वक्त जो है इतना मतलब लोग सहम गए हैं दुनिया अमेरिका के अंदर कि समझ नहीं आ रहा लोगों को कि सब कुछ होने के बाद भी, मतलब लीगल कोर्ट के पेपर होने के बाद भी ऐसा व्यवहार आइस के एजेंट्स क्यों कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अब आज आकर अमेरिका इस पॉइंट पर खड़ा है कि क्या लॉ की कोई कीमत नहीं, जो लॉ में लिखा है, जो लोग लीगली, जो लोग इमिग्रेशन कोर्ट में जा रहे हैं, अपनी हियरिंग्स पे जा रहे हैं, लीगली पाथ को फॉलो कर रहे हैं, क्या फिर भी उनकी सुनवाई नहीं? अगर वो जाते हैं तो तब भी डिटेन करते हैं, नहीं जाते हैं तब भी उनको डिपोर्टेशन लग रही है। तो आज आकर दोस्तों अमेरिका में जो लॉ है ना वो इस वक्त सफ़र कर रहा है, और इसी वजह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। डेमोक्रेट्स को तो मैं बोलता बहुत स्ट्रांग पॉइंट मिला हुआ है इस वक्त कि वो वापस आएंगे, ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा अमेरिका के अंदर, और देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट वापस आती हैं कि नहीं। जिस दिन तो वापस आएंगी तो ये एक और जीत है डेमोक्रेट्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और हार होगी। अब बताओ कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन शको फटे। और हाँ, आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी बात भी करते हो और बुरी बात भी बताते हो, आप एक तरफा बात नहीं करते।
दोस्तों यही तो मतलब है। ये थोड़ी है कि मतलब जो अच्छा काम होगा वो बताई जाओ, जो खराब हो रहा है अब जैसे ये खराब ही है, पहले डिपोर्ट कर दिया, बाद बोले गलती होगी, ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।